خدا کا کلام، یہی خدا کا کلام ہے جو ہمیں مسیح یسوع کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی خدا کا کلام ہے جو ہمیں خدا کے وجود کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہی کلام ہے جو ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم طبی طور پر گنہگار ہیں۔ یہی کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، اور یہی کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہمارا ایماندار ہوتے ہوئے اس کلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیونکہ آپ کو دنیا میں بہت فرق لوگ ملیں گے جن کا اس کتاب کے ساتھ بڑا فرق تعلق ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کتاب کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کتاب کو ناپسند ہی نہیں بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کی تعلیمات کا غلط استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی عملی زندگی میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو اس کتاب کو اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا اس دنیا میں وجود نہ رہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو ان لوگوں سے خطرہ نہیں ہے جو اس کتاب سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کتاب کو ان لوگوں سے بھی خطرہ نہیں ہے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کو ان لوگوں سے بھی خطرہ نہیں ہے جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، جو اس پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ حقیقت میں اس کتاب کو اگر خطرہ ہے تو ان لوگوں سے جو اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کتاب کی سچائیاں اور تعلیمات ہمیں نظر نہ آتی ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہوں۔ اگر اس کتاب کو خطرہ ہے تو بنیادی طور پر ایمانداروں سے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس ہے اور میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کی عزت کرنے والا ہوں، میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ ہمیں جاننا ضروری ہے، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ میرا اس کتاب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میرا اس کتاب کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم اس کتاب سے ریلیٹڈ 4 حقائق سیکھیں گے، 4 نکات سیکھیں گے اس کتاب کے بارے میں، 4 حقیقتیں کہہ لیں، 4 باتیں کہہ لیں، 4 پوائنٹس کہہ لیں، 4 ایسی چیزیں جو ہم اس کتاب کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلا نکتہ جو اس کتاب کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ ابھی جو خط پڑھا گیا اسی کے پہلے باب کی 10ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ آسان لفظوں میں رسول یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب، یہ نبوت، یہ صحیفہ جات جو لکھے گئے ہیں، یہ روح القدس کی رہنمائی سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ بائبل مقدس کا مصنف کون ہے تو یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کا مصنف کون ہے؟ خدا ہے۔ بیسک جو تھاٹ ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ خدا کا، اور خدا کے روح کے وسیلے سے انبیاء نے، لوگوں نے، رسولوں نے اس کو تحریر کیا، اور خدا اس کا بنیادی مصنف ہے اور تحریر کرنے والے انسان ہیں۔ انسانوں نے اس سوچ کو قلم بند کیا جو روح القدس نے ان کو دیا۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں، اسے ہولی بائبل کہا جاتا ہے، کتاب مقدس کہا جاتا ہے، بائبل مقدس کہا جاتا ہے، دی بائبل کہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جو اس کتاب کے لیے نام ہے، جو خدا کا فیوریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام، the word of God، جو خدا پسند کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں 12 یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 31ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ خدا کا کلام۔ کس کا کلام؟ خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ افیسیوں 6 باب کی 17ویں آیت، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔
सो आपको देखने में नजर आएगा बारहा इसमें लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, खुदा का कलाम। थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम, किसका पैगाम, खुदा का पैगाम, रसूल ये नहीं कह रहा जब हमारा पैगाम लिखा है कि जब खुदा का पैगाम हमारी मारिफत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। सो बाइबल मुकद्दस इस बात पर रोशनी डालती है कि ये जो किताब है ये खुदा का कलाम है। अगर आप तौरात का मुतालिया करें जो पेंटाट्यूक है, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 कुतुब, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये पांचों किताबों में 500 से ज्यादा दफा खुदा ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये मेरा कलाम है। बाइबल के बारे में, इस किताब के बारे में कहा कि ये मेरा कलाम है। अगर आप सहीफों का मुतालिया करें तो 1000 दफा से ज्यादा आपको इस तरह की आयात मिलेंगी जिनमें खुदा के बारे में ये कहा गया कि खुदा ने कहा कि ये मेरा कलाम है। फिर अगर आप पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो पुराने अहदनामे में 4000 से ज्यादा दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ये खुदा का कलाम है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमें इतने डिटेल बताने की क्या जरूरत है, इसलिए मेरे अजीजों क्योंकि खुदा ये बात चाहता है कि बनी नौ इंसान इस किताब के बारे में अगर कोई सोच रखता हो तो वो एक ही सोच हो कि ये खुदा का कलाम है। तो जब आप जानते होंगे, जब आपके दिल और दिमाग में एक ही ख्याल है कि ये खुदा का कलाम है तो इसका मतलब जानते हैं क्या, इसका मतलब है जब इस किताब में से आपके साथ कोई बात की जाए तो आप जानते हो कि मेरे साथ कौन हम कलाम हो रहा है, खुदा हम कलाम हो रहा है। क्योंकि ये कलाम जो मेरे साथ बांटा जा रहा है वो किसका कलाम है, खुदा का कलाम है। फिर हमारी इम्प्लीकेशन, फिर है हमारे अमाल फर्क होंगे क्योंकि हम जितनी सच्चाइयां इस किताब में से सीखेंगे हम उतनी उस सच्चाइयों पर अमल करेंगे क्योंकि हम जानेंगे कि ये खादिम, ये पादरी, ये खादिमा मुझसे बात नहीं कर रही बल्कि ये खुदा का कलाम है। सो खुदा मेरे साथ हम कलाम हो रहा है। इसीलिए रसूल 2 तीमुथियुस का खत जब लिखते हैं उसके 3 बाब की 16वीं आयत में कहते हैं हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफा जो लिखा गया किसके इल्हाम से है, खुदा के इल्हाम से, खुदा ने दिया है। और फिर वो कहते हैं वो तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी के लिए की तरबियत के लिए फायदा मंद है। सबसे पहले रसूल ने लफ्ज तालीम इस्तेमाल किया। ये कलाम हमें एजुकेट करता है, हमें तालीम देता है तर्ज़े जिंदगी गुजारने का। ये हमें बताता है कि ये कलाम मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। और फिर वो रसूल दूसरी बात कहता है इल्जाम, यानी यही किताब है जो हमें बताती है कि हम गुनहगार हैं, यही किताब है जो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर गुनाह है। बास का जब खादिम कलाम करते हैं बहुत से बहन भाई कहते हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, मुझे लगा जैसे मेरे लिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता है और रूहुल कुद्स आपके साथ हम कलाम होता है और जब कभी आपको कलाम के दौरान लगे कि ये कलाम मेरे उस फलां गुनाह के बारे में है तो यकीन जाने खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में उस इल्जाम को हाईलाइट करता है ताकि आप उस गुनाह को तर्क करें। फिर रसूल तीसरी बात कहते हैं कि इस्लाम के लिए, यानी जब आपको गुनाह की पहचान हो जाती है इस किताब के वसीले से तो फिर आप उस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालेंगे कैसे, वो भी यही किताब आपको बताएगी। और फिर चौथा पॉइंट जो रसूल ने बोला है वो है रास्तबाज़ी। जब आपको तालीम मिल गई, गुनाह की पहचान हो गई, गुनाह से छुटकारे का तरीका मिल गया तो फिर आप एक रास्तबाज़ जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। यही किताब है जो आपकी रहनुमाई करेगी कि आपको कैसे एक कामयाब मसीही जिंदगी गुजारनी है। सो हमारे लिए ये किताब इस कदर अहम है, हमारे लिए ये किताब तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद है। इससे हमें फायदा मिलता है। ये किताब हमारी मदद करती है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है क्योंकि ये लिखा है कि खुदा के इल्हाम से मुराद खुदा का ब्रेथ, खुदा की सांस, और ये खुदा की थॉट, खुदा के लहजे, खुदा की सांस जो है वो हम तक पहुंची है, खुदा का कंसेप्ट हम तक पहुंचता है इस किताब के वसीले से। ये किताब हम पर अया करती है। और यकीन जाने ईमानदार के लिए सबसे बेहतर जिंदगी जीने का जो तरीका है वो इसी किताब में आपको मिलेगा। दुनिया की किसी किताब में आपको जिंदगी गुजारने का अच्छा पैटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से न जीता रहेगा बल्कि और उस बात से जो
हालेलुया, जो किसके मुंह से निकलती है? सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी हमारी जिंदगी का सरचश्मा उसका जिंदा कलाम है। और तो और ये खुदा का कलाम तो है, इसके बारे में एक और बड़ा दिलचस्प एक मैं आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगी कि खुदा ने इस किताब के बारे में कहा कि ये खुदा का कलाम है। आप जानते हैं खुदा ने एक और शख्सियत के बारे में कहा कि ये खुदा का कलाम है। मसीह यीशु के बारे में खुदा ने कहा, अपने बेटे के बारे में खुदा ने कहा कि ये खुदा का कलाम है। अगर हम मुकाशवा 9वें बाब की 19वें बाब की 13वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। ये यीशु की बात हो रही है कि उसका नाम क्या कहलाता है? कलाम में खुदा। यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में पहले बाब की पहली आयत में कहते हैं, इब्तिदा में कलाम था और कलाम के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। सो कलाम में खुदा यानी खुदा का कलाम। इस किताब के लिए खुदा ने कहा ये खुदा का कलाम है, और अपने बेटे यीशु के लिए भी खुदा ने कहा ये खुदा का कलाम है। ये एक नहीं है, खुदा का कलाम और यीशु एक नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे बाप है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह है, उसी तरह कलाम है। नहीं, वो तीनों एक हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस अलूहियत को सपोर्ट करती है। बाइबल मुकद्दस और मसीह यीशु एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। जब कभी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको यीशु नजर आएगा, और जब कभी आप यीशु की बातें पढ़ेंगे तो आपको ये किताब उसके लहजे में और उसकी बातों में नजर आएगी। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यीशु और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। सबसे पहले मुमासलत जो मसीह यीशु में और खुदा के कलाम में पाई जाती है वो ये है कि ये दोनों खुदा की तरफ से हमारे पास आए। किसकी तरफ से आए हैं? गलतियों 4 बाब की 4 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। यीशु हमारे पास किसकी तरफ से आया है? खुदा की तरफ से। बाप ने अपने बेटे को भेजा है। सो खुदा का कलाम हमारे पास किसकी तरफ से आया? दूसरा पतरस पहले बाब की 21वीं आयत। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। सो यीशु हमें किसकी तरफ से मिला? खुदा की तरफ से। ये कलाम भी हमें किसकी तरफ से मिला? खुदा की तरफ से मिला। दूसरी जो मुमासलत इन दोनों में पाई जाती है वो ये है कि ये दोनों अब्दी हैं। यीशु भी अब्दी है और खुदा का कलाम भी। हो सकता है किसी इंसान के अल्फाज उससे फर्क हो, वो कहता कुछ और हो, करता कुछ और हो, लेकिन जो कुछ यीशु कहता है एग्जैक्ट यही कलाम वही बयान करता है। सो मसीह का कलाम मसीह की बातों को और मसीह के किरदार को सपोर्ट करता है। यीशु अब्दी है तो उसका कलाम भी अब्दी है। अगर हम इसमें से पढ़े मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत, उसमें लिखा है, यीशु फरमाता है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। यीशु ने कहा मैं मर गया था लेकिन अब क्या हूँ? जिंदा हूँ। और कब तक जिंदा रहूंगा? कुछ सालों तक, कुछ सदियों तक। बल्कि यीशु कहता है अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और ना सिर्फ अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा बल्कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, इनका कंट्रोल भी अब किसके पास है? यीशु कहता है मेरे पास। और वो कहता है मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, अब मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। और खुदा के कलाम के बारे में अभी जो इक्तबास पढ़ा गया उसमें रसूल 25वीं आयत में क्या कहते हैं? लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। कब तक कायम रहेगा खुदा का कलाम? यीशु मसीह अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा तो उसका कलाम भी अब तक कायम रहेगा। तीसरी जो इनमें मुमासलत है वो ये कि ये दोनों ला तब्दील है। यीशु भी ला तब्दील है और उसका कलाम भी ला तब्दील है। अगर हम इब्रानियों 13वें बाब की 8वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मसीह यीशु ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता, वो अब तक क्या है? यकसा है। ही इज द सेम। वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, अब तक वैसा ही रहेगा। सो खुदा के कलाम के बारे में मत्ती की इंजील 4 बाब की 4 आयत में मसीह यीशु ने फरमाया, 5वें बाब की 18वीं आयत में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब पूरा ना हो जाए।
खुदा का कलाम ला तब्दील है, जो था वही आज है और वही अब तक रहेगा। फिर चौथी जो मसीह यस्सु में और उसके कलाम में मुमासलत पाई जाती है, और वो ये है कि दोनों गुनाह की तारीकी में रोशनी का काम करते हैं। मसीह यस्सु के बारे में यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 12वीं आयत में यस्सु ने खुद कहा, यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा? दुनिया का नूर मैं हूँ। यूहन्ना की इंजील में पहले बात की पहली आयत पढ़े तो वहाँ पे रसूल ने लिखा कि वो जिंदगी दुनिया का क्या थी? नूर थी। नूर जो है वो तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सो मसीह यीशु इस गुनाह भरी दुनिया में, इस गुनाह की तारीकी में क्या काम करता है? नूर का काम करता है, रोशनी का काम करता है। सो खुदा का कलाम क्या करता है? ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मुझे राह देखने के लिए जब रोशनी चाहिए तो तेरा कलाम मुझे वो रोशनी देता है। पांचवी आखिरी मुमासलत जो खुदा के कलाम में और मसीह यीशु में पाई जाती है वो ये है कि दोनों सच्चाई है, दोनों बरहक हैं। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में यीशु ने उसे कहा राह हक। हक से मुराद क्या है? सच्चाई। यीशु ने कहा राह जिस पर आपको चलना है वो मैं हूँ, और वह सच्चाई जिसकी पैरवी करनी है वो भी मैं हूँ, और जिंदगी जो हासिल करनी है वो भी मैं हूँ। यीशु ने इस बात का क्लेम किया कि मैं सच्चाई हूँ, मैं हक हूँ। और खुदा के कलाम के बारे में यीशु मसीह ही फरमाते हैं। यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 17वीं आयत में यीशु ने कहा, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। सो हमें मसीह यीशु में और खुदा के कलाम में ये मुमासलत मिलती है। मैंने कहा ये एक नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा भी नहीं है। मसीह का कलाम और मसीह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और मसीह यीशु के बारे में जो भी बात है वो ही बात एग्जैक्टली कलाम के बारे में भी हमें मिलती है। और खुदावंद के एक बड़े अजीम खादिम कहते हैं, खुदा के कलाम में इतनी कुव्वत और कुदरत है। उन्होंने एक दफा बाइबल की ट्रांसलेशन की, उन्होंने तर्जुमा किया, तो उन्होंने तर्जुमा करने के दौरान के तजर्बे को लिखा, और वो कहते हैं मैं इतना खौफजदा था जब मैं बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी घर की मेन स्विच बंद किए बगैर दोबारा से वायरिंग कर रहा हूँ, और कहीं से भी मुझे झटका लग सकता है। और मैं इस कदर खौफजदा था क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूँ यीशु की बातें किस कदर कुदरत और कुव्वत से भरी हुई हैं। सो खुदा का कलाम है। हमने सीखा पहला नुक्ता कि ये जो किताबें मुकद्दस है ये क्या है? खुदा का कलाम है। और यकीन जाने जब आपके दिलों में ये ख्याल होगा, इसको पढ़ते वक्त, इसको सुनते वक्त, इसका जिक्र सुनते वक्त, जब आपके दिल में ये बात होगी कि ये किसका कलाम है? खुदा का, तो आपके रवैये फर्क होंगे, हमारा अमल फर्क होगा, हमारी फरमाबरदारी फर्क होगी। हम जानेंगे कि ये खुदा मेरे साथ हम कलाम हुआ है। दूसरा नुक्ता जो खुदा के कलाम के बारे में आज हम सीखेंगे वो ये है, हमने पहला नुक्ता सीखा कि ये खुदा का क्या है? कलाम है। और दूसरा नुक्ता जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि ये खुदा का कलाम लाखता कलाम है। ये खुदा का कलाम लाखता कलाम है। हो सकता है बहुत से लोग बहुत से सवाल उठाते हों कि इस तरह से है बाइबल में, इस तरह से ये बात है, उस तरह से, लेकिन मेरे जिसको मैं आपको एक बता दूं, मेरे पास अगर कोई ऑथेंटिसिटी है या मुझे किसी बात का वसूख है कि ये कलाम लापता कैसे है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है मेरा यीशु बेऐब है, तो उसका कलाम भी बेऐब है, उसका कलाम भी लापता है। बाइबल मुकद्दस ने कितने ही परेशानियों, कितने ही मुसीबतों, कितने ही तूफानों का सामना किया हो, आज 2023 में भी ये खरी साबित होती है, आज भी ये सच्ची साबित होती है, आज भी ये बरहक साबित होती है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। हो सकता है कोई सोचे कि साइंसदान आज इस तरह से रिसर्च करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं, या वो ये कहते हैं कि इंसान खुद से पैदा हो गया या जमीन का खुद से वजूद आया, तो मैं आपसे कहूंगी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। आप यकीन जाने एक वक्त आने वाला है जब वो इसकी सारी सच्चाइयों पर यकीन करेंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि वो बाइबल मुकद्दस की किसी बात से टैली करें, मिले और कहें कि साइंस ने इतनी रिसर्च की और ये बात साबित हुई कि जो बाइबल ने कहा था वो ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बाइबल सच्ची साबित हुई। फिर भी इसका मतलब यह है कि साइंस ठीक डायरेक्शन में मेहनत कर रही है। फिर भी हमें ये तस्दीक मिलती है कि साइंस ठीक
سمت میں جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بائبل کی تصدیق, کیونکہ بائبل مقدس کسی شخص, کسی فلاسفر, کسی ڈاکٹر, کسی بھی ریورنڈ یا کسی بھی بہت بڑے اسکالر کی محتاج نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا زندہ اور مؤثر کلام ہے. یہ کتاب خود اس بات کا زندہ ثبوت ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, اس دور میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پر کچھ بھی کبھی بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہم نے ہونے والی بدعتوں یا ہونے والی منفی باتوں پر بڑی جلدی دل نہیں لگانا, کیونکہ 2016 میں کولوراڈو ایئرپورٹ پر ایک خاتون کی تصویر کھینچی گئی جو کہ چیئر پر بیٹھے فون یوز کر رہی تھی, اور اس کا 2 ماہ کا بچہ نیچے فلور پر لٹایا ہوا تھا. اس کی جب پکچر لی گئی تو وہ پکچر بہت وائرل ہوئی. لوگوں نے اس پکچر کو بڑا ٹرول کیا اور بڑے کمنٹس کیے کہ یہ بڑی غیر ذمہ دار ماں ہے اور کچھ اس طرح سے بولا. اب یہ پکچر اتنی وائرل ہوئی کہ یہ پکچر اس عورت تک بھی پہنچ گئی. سو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی فیملی کی پکچر لی اور وہی پکچر لی جو وائرل ہوئی تھی, جو تصویر وائرل ہوئی تھی, وہی تصویر اس نے فیس بک پر لگائی اور اس نے نیچے ساری ڈیٹیل لکھی کہ میں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں آئی ہوئی تھی اور وہاں سے میں نے پھر اپنے گھر جانا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ اس جگہ پر جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو وہاں کی جو فلائٹ تھی وہاں سے جو جانی تھی وہ 20 گھنٹے ڈیلے تھی. وہ فلائٹ کتنے گھنٹے ڈیلے ہوئی؟ 20 گھنٹے. اور چونکہ میرا بچہ بھی 2 ماہ کا تھا تو میں اسے مسلسل گود میں اٹھا کر تھک چکی تھی, تو میں نے مناسب سمجھا میں اسے نیچے فلور پر لٹاؤں تاکہ وہ کمفرٹیبل. اور بہت سی مائیں جانتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ دیر گود میں رکھنا ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا انہیں ہم بیڈ پر یا فلور پر لٹاتے ہیں. سو اس نے یہ ساری ڈیٹیل لکھی اور پھر نیچے لوگوں نے کہا ہاں واقعی اس کے ساتھ بڑا غلط ہوا, یہ پکچر اس طرح سے وائرل نہیں ہونی چاہیے تھی. سو لوگوں کو سچائی جاننے میں سم ٹائمز تھوڑا وقت لگتا ہے. سو یہ جو سچائی ہے یہ بڑی گہری اور بڑی مضبوط سچائی ہے, اس کو جاننے میں لوگوں کو وقت کی ضرورت ہے. سو انہیں ٹائم دیں, ان کی باتوں میں نہیں آنا, یہ اس بات پر نہیں سوچنا کہ اگر سائنس ایسا کہتی ہے تو شاید ایسا ہے. سائنس ایک دن ضرور خدا کے کلام پر یقین کرے گی اور وہ جانے گی کہ ہمارے پاس جو علم ہے, ہمارے پاس جو نالج ہے, جو ریسرچ ہے وہ بڑی محدود ہے. خدا اور اس کا کلام بہت وسیع ہے. ہمیں تیسرا نقطہ جو ہم خدا کے کلام کے تعلق سے سیکھیں گے, پہلا ہم نے سیکھا کہ بائبل مقدس کیا ہے. دوسرا نقطہ ہم نے کیا سیکھا کہ یہ لاقطع ہے. یہ خدا کا کلام کیا ہے؟ لاقطع ہے. اس میں اب لوگ اگر سوال اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی کم علمی کی وجہ سے ہے. ان کے پاس لمیٹڈ اور محدود علم ہے جس کے باعث وہ سوال اٹھاتے ہیں. تیسرا نقطہ جو آج ہم خدا کے کلام کے بارے میں سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ صرف لاقطع ہی نہیں بلکہ لازوال بھی ہے. یہ خدا کا کلام کیا ہے؟ لازوال بھی ہے. دیکھیں خدا کا کلام جو کہ صدیوں میں تحریر ہوا, 1500 سے 1600 سالوں میں یہ خدا کا کلام مکمل ہوا. 30 نسلوں کا وقت لگا اس بائبل کو مکمل ہونے میں. اور اس کلام کو تھاٹ دینے والا, آئیڈیا اور خیالات دینے والا روح القدس ہے, رہنمائی دینے والا روح القدس ہے. لیکن اس کو تحریر کرنے والے خطا کار تھے, ناکامل تھے, شاید وہ پورے نہیں تھے, شاید ان کا کردار کامل نہیں تھا, لیکن روح القدس کی رہنمائی اور خدا کی قدرت اور اس کا معجزہ ہے کہ یہ کلام آج بھی لاقطع ہے اور لازوال ہے. اتنا عرصہ گزرا, صدیاں گزری, صدی کے بعد صدی آئی, لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے, اس کتاب کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کیا, اس کو ناپسند کرنے کا اظہار کیا, لیکن یہ کلام آج بھی قائم اور دائم ہے. بائبل آج بھی اپنی سچائی پر قائم ہے. دوسری صدی کے آخر میں, دوسری عیسوی صدی کے آخر میں ایک ایمپرر آئے جس کا نام تھا ڈائیکلیشن. وہ بائبل مقدس کو ناپسند کرتے تھے اور اس نے اپنی امپائر میں, اپنی پوری حکومت میں بائبل مقدس کے خلاف تحریکیں چلائیں. اس نے بائبل مقدس کو جلانا چاہا اور جلایا بھی. بہت سے مسیحیوں کو قتل بھی کیا, ان پر مصیبتیں جھاڑی تاکہ وہ لوگ مسیح کا انکار کریں, بائبل مقدس کا انکار کریں. اور ایک دن اس نے کیا کیا, 330 عیسوی صدی میں, 303 عیسوی صدی میں اس نے کیا کیا, بائبل مقدس کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کے اوپر اپنا مجسمہ کھڑا کیا اور اس مجسمے کے اوپر اس نے لاطینی میں بڑا بڑا لکھا کہ آج مسیحیت اور بائبل مقدس کا آج ختم ہے, آج یہ اینڈ ہو گیا. اس نے لاطینی زبان میں یہ لفظ لکھا. اس کے بعد
लोग खामोश रहे, मसीही डरे हुए खौफ ज़दा थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 22 साल बाद 325 ईस्वी सदी में कॉन्स्टेंटीन नाम का बादशाह बर्पा हुआ। जब उसने बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जाना, बाइबल मुकद्दस के बारे में देखा और पढ़कर, आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने बाइबल मुकद्दस को नहीं बल्कि मसीहियत को सरकारी मजहब का नाम दे दिया। और उसने कहा हमारी एम्पायर में अदालत के वक्त सच और झूठ को जानने के लिए इस किताब का इस्तेमाल किया जाए। सो डायक्लिशियन कितनी भी कोशिश कर लेता वो नाकाम हुआ। उसके बाद वोल्टेयर नाम का एक शख्स आया 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में वोल्टेयर नाम का एक फ्रांस का फिलोसोफर आया। वो भी बाइबल मुकद्दस को नापसंद करता था, नफरत करता था और उसने बहुत से खतूत लिखे बाइबल मुकद्दस के खिलाफ, मसीहियों के खिलाफ कि आप ये ऐसे हैं, इनकी किताब ने इस तरह से लिखा है, और बहुत सी बातें वो किया करता था। 1776 में वोल्टेयर ने एक लेटर जारी किया और उस खत में उसने लिखा कि आज से 100 साल बाद मसीहियत और बाइबल मुकद्दस का वजूद खत्म हो जाए। कोई मसीहियत को नहीं जानेगा और कोई बाइबल मुकद्दस को जानने वाला नहीं होगा। उसने ये 1776 में ये बात लिखी और ये उसने पेशन गोई की। उसने कहा ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी पेशन गोई है कि आज से 100 साल बाद ना तो आपको बाइबल मिलेगी और ना ही आपको कोई मसीही मिलेगा, क्योंकि इसका कोई बुनियाद नहीं है, ये बड़ी जल्द खत्म हो जाएगी। फिर क्या हुआ? सदी तो बहुत दूर की बात, उस शख्स के मरने के 50 साल बाद बाइबल मुकद्दस जो थी, जिस घर में वो रहता, उसके 2 घर थे। एक उसका घर स्विट्जरलैंड में था, जिनीवा में उसका शहर था, और एक उसका घर फ्रांस में था। सो जिनीवा में जो घर था उसका, उस घर को क्या किया गया, इवेंचुअलिकल सोसाइटी ने उसके घर को खरीदा और खरीदने के बाद उसी के घर को बाइबल प्रिंटिंग प्रेस बनाया और उसी के घर में से बाइबल दूसरी कौमों तक और लोगों तक जाना शुरू हुई। सो वो जो ये दावा कर रहा था कि ये बाइबल खत्म होने वाली है, वो ये नहीं जानता था कि उसी का घर, जिस घर में बैठकर वो ये झूठी पेशन गोई कर रहा था, उसी घर से लोगों तक ये वो कुछ नहीं, खुदा का कलाम आज भी कायम है और वो लाजवाब है, वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, उसे कोई भी तबाह कर नहीं कर सकता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये जिंदा खुदा की बातें हैं और इनको कोई भी खत्म कर नहीं सकता। चौथा और आखिरी नुक्ता, बड़ा है मैं नुक्ता, ये पहला नुक्ता में सीखा कि ये खुदा का कलाम है, दूसरा हमने सीखा कि ये ला कथा है, तीसरा नुक्ता हमने सीखा कि ये ला सवाल है, चौथा नुक्ता ये है कि ये ला ज़मी है, हमारे लिए लाजमी है। ईमानदारों के लिए ये किताब क्या है? लाजमी है। हमारे लिए क्यों लाजमी है? पहली बात, ये वाहिद दुनिया की किताब है जो मसीह की खुशखबरी बताती है। दुनिया की किताबों में आपको नजात का पैगाम नहीं मिलेगा, दुनिया की किताबों में आपको गुनाह से छुटकारे का पैगाम नहीं मिलेगा। वाहिद ये किताब है पूरी दुनिया में जो बनी नौ इंसान को उसके गुनाह से बचने का रास्ता दिखाती है, जो दुनिया को नजात का राह दिखाती है, जो मसीह यीशु की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाती है। दूसरी ये किताब हमारे लिए क्यों अहम है? ना सिर्फ ये कलाम की खुशखबरी, ना सिर्फ मसीह यीशु की गॉस्पेल हम तक ये किताब पहुंचाती है, बल्कि ये किताब हमें मेथड भी देती है, तरीका भी बताती है कि हमने इस किताब की खुशखबरी को दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस की किसी भी एक वर्ड्स को लेकर, किसी भी एक आयत को लेकर हम पूरी थियोलॉजी बना नहीं सकते। बाइबल मुकद्दस का पैटर्न ये है कि आप जब भी बाइबल की किसी बात को समझना चाहें या जानना चाहें, आपको पूरी बाइबल से उसकी स्टडी करना जरूरी है कि पूरी बाइबल उस ख्याल के बारे में क्या कहती है। जब भी आप देखेंगे बहुत से लोग सिर्फ एक आयत को पकड़ेंगे और बिदअत बना लेंगे, अपनी एक तालीम बना लेंगे, अपनी एक डिनोमिनेशन बना लेंगे, और उसकी वजह एक ही होगी क्योंकि वो इस बाइबल के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ये किताब हमें पैटर्न देती है कि हर बात किससे रजू करनी है, सहीफों से, तौरात से, बाइबल मुकद्दस की बाकी किताबों से टैली करना है कि वो इस खास आयत के बारे में क्या बयान करती हैं। आप अपने यीशु को ले लें, मुझे बताएं मसीह यीशु ने ज़मीनी खिदमत में कभी कोई बात अपने ख्याल से कही हो तो फिर कहें। आप जब देखें मसीह यीशु की आजमाइश भी हुई तो उसने इब्लीस से क्या कहा?
लिखा है, लिखा है, लिखा है। जब तालीम दी तो यसु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है। तो फिर आज खुदाम क्यों कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये बात ऐसे है? आज भी मैं चाहती हूँ खुदाम यही कहें कि लिखा है। हालेलुया। आज भी हमारी बुनियाद ये कलाम होना जरूरी है। आज भी हमें जानना है। देखिए, नजात के बारे में पूरी बाइबल मुकद्दस का एक ही पैगाम है। पूरी बाइबल आपको ये बताती है कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और इंसान को गुनाह से बचाने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। सो इसी तरह बाइबल हर बात के बारे में पूरी तालीम रखती है और उस पूरी तालीम को अपनी जिंदगी में लेना ही हमें बाइबल सिखाती है। हमारे यस्सु ने कलाम मुकद्दस का इस्तेमाल किया तालीमात में, मौजज़ात में, सवालों जवाब में। फकीर फरीसियों ने भी जब सवाल किए तो यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया? हालांकि वो खुद खुदा था, अलूहियत उसके अंदर थी, सारा कलाम उसके पास था। वो खुद से कोई नई फिलॉसफी भी दे सकता था, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं गया। तो मेरे जो ईमानदारों को भी यहाँ से बाहर नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद ये 66 किताबें हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सो खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है? जरूरी है। और जरूरी में पहला नुकता ये, क्योंकि मसीह की खुशखबरी हमें इसी किताब से मिलती है और मसीह की निजात का जो पैटर्न है, जो तरीकेकार है इसकी स्टडी का, इसको सीखने का, इसको समझने का, वो भी हमें इसी किताब से मिलता है। तीसरा और आखिरी नुकता कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और वो ये है कि ये ईमानदारों की जो ग्रोथ है, ईमानदारों का बढ़ना है। किसी ईमानदार का मसीह यीशु को कबूल करना, याद रखिए, कोई खादिम किसी की जिंदगी तब्दील नहीं कर सकता, कोई बहन भाई किसी की जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई किसी की जिंदगी को तब्दील कर सकता तो वो खुदा का जिंदा कलाम है। और हाँ, यही बाइबल मुकद्दस भी हमें ये पैटर्न देती है। जब कोई मसीह यीशु को कबूल करता है, नए सिरे से पैदा होता है, तो फिर वो उस खानदान का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं होता जितना वो ईमानदारों की जमात का हिस्सा होता है। बहुत से लोग हो सकता है सोचते हो कि मैं यीशु को तो कबूल करता हूँ, मैं तौबा भी करता हूँ, निजात भी पाई है, लेकिन मैं किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें पैटर्न देती है कि जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, जब आप निजात याफ्ता हैं, तो आपका खानदान कलीसिया है। आपका खानदान कौन है? इनफैक्ट कलीसिया दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा खानदान है? कलीसिया। मसीहियों का खानदान सबसे बड़ा। और खुदा चाहता है कि हम एक जिम्मेदार कलीसिया का रुकन बने। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम 3 माह में एक बार चर्च चले गए या महीने में एक बार, नो। हम अगर कलीसिया के जिम्मेदार मेंबर हैं, जिम्मेदार रुकन हैं, तो हमें कलीसिया की जो इबादत है उनका हिस्सा बनना लाजमी है। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ, जुम्मे की इबादत को प्लीज ना मिस करें। 7:30 बजे चर्च लगता है और मैं बहुत से लोगों को एब्सेंट देखती हूँ। आप सबसे दरखास्त है जुम्मे की इबादत में जरूर शामिल हो। उस दिन भी हम गीत गाते हैं, उस दिन भी प्रस्तुत होती है और उस दिन भी खुदा का कलाम हमारे साथ बांटा जाता है। सो हमें कलीसिया का हिस्सा होते हुए एक जिम्मेदार रुकन होना जरूरी है। और ये पैटर्न हमें कौन बताता है? खुदा का कलाम बताता है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। सो खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस क्या है? खुदा का कलाम है। ये लापता है, ये लाजवाल है और ये लाजमी है। और सवाल आखिर में वही पूछूंगी कि आपका इस किताब के साथ क्या ताल्लुक है? इस बाइबल के साथ आप किस रिलेशन को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं? क्योंकि इस कलाम में वादे हैं, इस कलाम में मौजूद ऐसी चीजें हैं, ऐसी बरकत, ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हैं, और एक अथॉरिटी है, एक इख्तियार है जो ईमानदार को दिया गया है। और हम तब तक उस ईमान को, उस तजर्बे को, उस बरकत को, उन वादों को अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते जब तक हम इसके ताबे नहीं होते। इसके वादे हमारी जिंदगी में तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक हम इसके फरमाबरदार नहीं हो जाते। याद रखें, ये खुदा का कलाम है जो जिंदा और मुअस्सर है। ये ऐसी तलवार की मानिंद है जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और ये ऐसे बीज की मानिंद है, जो बीज को बोया जाता है तो एक तनावत दरख्त बनता है। जब ये आपकी दिल की जमीनों पर बोया जाता है तो ये आपके अंदर फल पैदा करता है, आपकी जिंदगी में आपको फ्रूटफुल करता है। ये ऐसे हथौड़े की मानिंद है जो आपके दिल पर चोट लगाता और आपको रिशेप ही नहीं करता, बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद जुए बंदरों को भी तोड़ देता है। आप
اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس کتاب کا ہر شخص کے ساتھ تعلق ہے. کس طرح سے؟ ایک گنہگار کے ساتھ اس کتاب کا توبہ کا تعلق ہے. گنہگار کو یہ کتاب توبہ کا پیغام دیتی ہے, ایمانداروں کو راست بازی کا پیغام دیتی ہے, اور وہ جو دکھی ہیں, جو فکر میں ہیں, جو پریشانیوں میں ہیں, ان کو ہمیشہ کی زندگی اور آرام کا پیغام دیتی ہے. یہ کتاب اس کے متلاشیوں کو تسلی اور اطمینان کا پیغام دیتی ہے. یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے, اس کے متلاشی, اس کے طالب جتنے بھی گہرے میں جائیں اس میں جاتے جاتے ہیں اور پیوند کو, اس کے پیمے کو ڈھونڈ نہیں پاتے. اور یہ اتنا آسان اور اتنا سادہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اس پانی میں سے پی کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ میرا, آپ کا, ہمیں اس بات پر سوچنا ہے میرا اس کتاب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ہمیں بڑا ضروری ہے, کیونکہ جنہوں نے اس کتاب کی اور ان صحائف کی, ان انبیاء کی لکھی ہوئی کتابوں کی نبوتوں کی اہمیت کو جانا, تو وہ کہتے ہیں خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. زبور نویس کہتا ہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ کیا نہ کروں, تیرے خلاف گناہ نہ کروں. پھر وہ کہتا ہے خداوند تیرا کلام برحق اور راست ہے. وہ کہتا ہے خداوند تیرا کلام شہد بلکہ شہد کے طبقوں سے بھی زیادہ شیریں ہے. جنہوں نے اس کلام کی اہمیت کو سمجھا ہے, جن کا اس کلام کے ساتھ تعلق ہے, وہ کہتے ہیں خداوند تیرا کلام سونے بلکہ بہت کندن سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور یسوع سے کہتے ہیں خداوند ان کو اپنی سچائی سے مقدس کر, کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے. اور رسول لکھتا ہے تیرا کلام جو ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے, جو روح, بدن, جان اور بند گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, جو زندہ اور مؤثر ہے. یہ کلام آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ خداوند تیرا کلام سچائی ہے, مجھے اس سچائی سے مقدس کر, مجھے پاک کر, مجھے آزاد کر, اور میں بھی ان تیرے رسولوں کی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں بھی کہنا چاہتا ہوں خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف